پہچان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ترازو سندل کا ضامن، ترازو امن کی پہچان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ترازو ماؤں بہنوں کا، ترازو نوجوانوں کا، ترازو ہے نشانوں کو وطن کے پاس بانوں کا، غریبوں بے سہاروں بے بسوں کے ترجمانوں کا، ترازو ظلم کی شاہی سے ٹکرانے کا ہے اعلان، ٹکرانے کا ہے اعلان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ترازو حدل کا ضامن، ترازو امن کی پہچان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، یہ دھرتی ہے شہیدوں کی، یہ قائد کی امانت ہے، اسے ظالم کو دے دینا امانت سے خیانت ہے، اسے مسند نشی کر دو کہ جو اہل دیانت ہے، بڑھائے گا جو آ کر اپنے پیارے ملک کی تو شان، پیارے ملک کی تو شان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ترازو سندل کا ضامن، ترازو امن کی پہچان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، اندھیرے دور کر دیں گے اجالے ہم ہلائیں گے، اصول و ضبط دنیا کے نرالے ہم ہلائیں گے، جو دنیا دے گی برسوں تک حوالے ہم ہلائیں گے، کریں گے رقم خوشحالی ترقی کے نئے عنوان، ترقی کے نئے عنوان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ترازو حدل کا ضامن، ترازو امن کی پہچان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ہمیں تعلیم کا کلچر وطن میں پھر سے لانا ہے، وطن کو سائنس و تحقیق سے ہی جگ بنانا ہے، جنہوں نے بیچ کھایا ہے چمن ان کو ستانا ہے، وطن سے عشق ہے ہم کو، وطن کے ہم ہے پشتیبان، وطن کے ہم ہے پشتیبان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ترازو سندل کا ضامن، ترازو امن کی پہچان، ترازو والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، سچا فاقر زار ترازو مظلوموں کا پیار ترازو، سچا فاقر زار ترازو مظلوموں کا پیار ترازو، ہم کو یقین ہے انشاءاللہ جیتے گا اس بار ترازو، جیتے گا اس بار ترازو، سچا فاقر زار ترازو مظلوموں کا پیار ترازو، سچا فاقر زار ترازو مظلوموں کا پیار ترازو، کب تک چور تیروں سے یہ تو مال بنائیں گے، ہم کو یقین ہے انشاءاللہ جیتے گا اس بار، جیتے گا اس بار، ترازو مظلوموں کا پیار ترازو، سچا فاقر زار ترازو مظلوموں کا پیار ترازو، جانی چائی ہوئی ہے مہنگائی کا ہے بازار، چولہے غریب کے بند پڑے ہیں مزے میں ہے ظالم میاں، ان ایجاروں بھٹکوں کے مل کے پر نہ چہرے کر دو، ہم کو یقین ہے انشاءاللہ جیتے گا اس بار ترازو، جیتے گا اس بار ترازو، مظلوموں کا پیار ترازو، سچا فاقر زار ترازو مظلوموں کا، انشاءاللہ مرتے دم تک یہ محبت قائم رہے گی۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے، میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں الیکشن کیوں لڑ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے الیکشن لڑنے کا، اور جو میرے مقابلے میں لوگ کھڑے ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ میں آج اس رب العالمین کو گواہ بنا کر کے اس لورا کی سرزمین پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے الیکشن لڑنا، میں کوئی اپنی وجاہت نہیں چاہتا، کوئی اپنی ذاتی شہرت نہیں چاہتا،
बाखुदा मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं कि ये जमीन अल्लाह की है, बंदे अल्लाह के हैं, तो इस पर निजाम अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह के निजाम के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। और जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं और मैं अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना चाहता हूं। जो मेरे मुकाबले में खड़े हैं उनका किबला काबा अमेरिका है और मेरा किबला काबा मक्का और मदीना है। मेरे मुकाबले में जो खड़े इनके रहनुमा अमेरिकन और बरतानिया के लोग हैं, मेरे रहनुमा अल्लाह और उसके रसूल हैं। जो मेरे मुकाबले में खड़े हैं उनके हाथों में अंग्रेज की किताब है और इस आपके भाई के हाथ में इंशाअल्लाह कुरान मजीद की किताब होगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बाखुदा इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। और जब निजाम मुस्तफा आएगा, इस्लामी हुकूमत कायम होगी, तो फिर गुरीनी वालों सुनो, मैं चंद दिन पहले गुरीनी गया था, मैं दरा गया था, सुम्मा गया था, गुरीनी गया था, टाई गया था। मुझे अफसोस हो रहा है, बाखुदा मुझे ये जो ऊपर पहाड़ है इसके हर बच्चा, हर बुजुर्ग रो रहा था कि पानी 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 जैसे करबला बना हुआ है। और उनके जो लीडर हैं 2001 से 5 तक नायब नाज़िम रहे, 2005 से फिर इलेक्शन लड़ा, 2008 से 13 तक एमपीए रहे, फिर सेनेटर रहे। लेकिन मुझे अफसोस है कि लोग पानी से महरूम हैं। लौरा की इतनी बड़ी तहसील कॉलेज से महरूम है। लौरा के अंदर कोई अच्छा स्कूल और अदारा नहीं है। ये जो भी बात कर रहे थे अस्पताल की, फीता इन्होंने काटा है। ये बाखुदा आपके भाई ने इसकी बुनियाद रखी है। अभी आपके नवाज अब्बासी साहब ने आपको बताया है कि 2002 में जब हमारी हुकूमत बनी एमएमए की, तो मैं वजीर सेहत रायतुल्लाह खान को लेकर यहाँ पर आया था और यहाँ पर आके बैठ के हमने नक्शा बनाया था, एडीपी में डाला था, पैसे रखे थे। लेकिन इन मेरे भाइयों को तो हमेशा दूसरों का शिकार खाने का शौक होता है, अपना शिकार करके ये नहीं खा सकते। इनके कारोबार देखो, इनके असासे देखो। जब पहली मर्तबा जीते थे, जब पहली मर्तबा हुकूमत में आए थे, तो इनके असासे कितने थे, आजकल कितने हैं। और मेरा पीआईए, मेरा स्टील मिल, मेरा रेलवे, मेरा वापडा, मेरा IHA, सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया। आओ 8 फरवरी को इनसे इंतकाम ले, वरना पाकिस्तान खसारे से नहीं निकलेगा। पाकिस्तान को खसारे से निकालना है तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI और जिन लोगों ने हुकूमतें की है उन सब का मुहासिबा करना होगा। और मेरे भाइयों, आप देखें कानून साजी कैसे करते हैं। ये ट्रांसजेंडर एक्ट का इन्होंने हवाला दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है? लड़के की लड़के से शादी और लड़की की लड़की से शादी। शर्मनाक, शर्मनाक। मेरे उसके पीछे तराजू का नुमाइंदा, ये अब्दुर्रज़ाक अब्बासी का नुमाइंदा, सबसे पहले मैंने ये कानून निकाला और साबित कर दिया कि तुम लोगों ने जुल्म किया है सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। हमारी हया के ऊपर, हमारी गैरत के ऊपर, हमारी खवातीन की जो शर्त नस्वानियत है उसके ऊपर तुम लोगों ने हमला किया है। मेरे भाइयों, पार्लियामेंट ने भी उनके ऊपर साबित कर दिया और फेडरल शरीयत कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ केस ले दिया। और अकेले में फेडरल शरीयत कोर्ट में, वफाकी शरीयत अदालत में हुकूमत से केस जीत लिया। हम तो आपके शर्म हया की जंग लड़ रहे हैं, आपकी गैरत और इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। आप देखें, ये जो PDM की हुकूमत है, इसने आखिरी महीने में 75 कवानीन पास किए। ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक माह के अंदर 75 कवानीन पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिए। पता है वो कौन से कवानीन थे? वो मेरे लिए नहीं थे, आपके लिए नहीं थे, वो गरीबों के लिए नहीं थे। महंगाई के खात्मे, लोड शेडिंग के खात्मे, रोजगार के लिए, सड़कों, पानी, इंसाफ और अमन के लिए नहीं थे, अपने लिए थे। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। उसमें से एक कानून ये था, एक कानून जिसके खिलाफ मैं उठा। और शुक्र है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर लोग देखते हैं। तो मैं तो पार्लियामेंट में मैंने इनके कपड़े उतारे ही, यकीन करें, मैंने पार्लियामेंट में इनके कपड़े उतारे। एक कानून उसमें यह था जिसके खिलाफ मैं खड़ा रहा कि जो 50 करोड़ की चोरी करेगा तो मैं उसको हाथ नहीं डालेगा।
50 करोड़ की चोरी करेगा। ये कानून पास कर दिया, ये कानून पीडीएम ने मंजूर कर दिया, ये कानून पाकिस्तान में मौजूद है। मैंने कहा चोरों के लिए कानून साजी, डाकुओं के लिए कानून साजी, लोगों की हौसला अफजाई कराते हो कि चोरी करो, डाका डालो, करोड़ों लूटो, तुम्हें कोई हाथ नहीं डालेगा। और मैं नहीं कहता, शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, जो इनके साबिक वजीर आजम है, लीडर है, कि उन 75 कवानीन के लिए पीडीएम की हुकूमत ने अपने तमाम मेंबरों को 20-20 करोड़ रुपए रिश्वत दी। रिश्वत, मेरे भाइयों, ये गाय और भैंसों की तरह बिकते हैं, ये भेड़ और बकरियों की तरह बिकते हैं, ये इंसान नहीं है, ये इंसान है। मैं आपसे कहता हूं, ये एक बंदा जर्नलों के सामने खड़ा हूं, जजों के सामने खड़ा हूं, बदमाशों के सामने खड़ा हूं, गरीबों के लिए खड़ा हूं, पाकिस्तानियों के लिए खड़ा हूं, इस्लाम के लिए खड़ा हूं, फलस्तीनियों के लिए खड़ा हूं, कश्मीरियों के लिए खड़ा हूं, बेखौफ खड़ा हूं, नजरअंदाज से खड़ा हूं। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, जरगा करता हूं, जोड़ी फैलाता हूं आपके सामने, ये मेरे साथी को, इसको वोट दो, इसको पास कर दो। मेरे भाइयों, देखिए ये आपका नुमाइंदा है। मैंने मुत्तफिका करारदाद पास कर ली सेनेट से कि जहां पाकिस्तान के स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में और जहां सरकारी खतों किताबत में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी नामी लिया जाएगा, लिखा जाएगा, जितने सहाबा किराम और अहले बैत की इज्जत और इस्मत की ताफुज की जंग ये तराजू लड़ रही है, जमात इस्लामी लड़ रही है, अब्दुल रज़ाक अब्बासी लड़ रही है। तो मेरे भाइयों, ये तो आपकी जंग है, हमारी दीन की जंग है, हमारी इज्जत की जंग है, हमारी मिट्टी की आजादी की जंग है। और मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे कहा कि ये पाकिस्तान हमने अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए हासिल किया है या अमेरिका और यूरोप की खुशनुदी के लिए। इसलिए मुल्क गुलाम है, गुलाम। हम गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को आजाद करना चाहते हैं। इन लोगों ने मेरे वतन को गुलाम बनाया है, इन लोगों ने मेरे वतन के हाथों में हथकड़ियां डाली है, इन लोगों ने मेरे वतन के गिर्द अमेरिकी और यूरोप की गुलामी की जंजीरें डाल दी है। हम इस गुलामी की जंजीरों को, इन हथकड़ियों को तोड़ना चाहते हैं। और मेरे भाइयों, मैं तो आपसे ये कहूंगा, और खुसूसन पीटीआई के लोगों से, पीटीआई के साथ इसमें शक नहीं है कि जुल्म हो रहा है, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज तो मैंने उठाया। मैंने एक दफा जनरल बाजवा के खिलाफ तकरीर की कि जब उसको देखा गया, आपको पता है, ये सारे एक थे जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए, एक तराजू वाला मुखालिफ खड़ा था, एक तराजू वाला। मेरे भाइयों, जब वो रिटायर हो गया तो वो दुबई के इशारे के ऊपर, ठगे के इशारे के ऊपर खड़ा था, उसकी तस्वीर आई। तो मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से तो दुबई का ट्रैफिक इशारा ज्यादा ताकतवर है कि बाजवा वहां खड़ा हुआ है। जब इजलास खत्म हो गया तो पीटीआई के सेनेटर मेरे पास आए और मेरी कमर तक तपाई और कहा, मुश्ताक साहब, आज आपने हमारा दिल खुश कर दिया। मैंने कहा, जरा बहादुरी का मुजाहिरा करो, कभी कभी हमारा दिल भी खुश किया करो। मेरे भाइयों, ये देखें, आज अखबारात में खबर है कि पीटीआई ने अपने लड़काना से सेनेटर को शोकाज जारी किया, इसलिए कि पीटीआई का सरदारी के हक में दस्तबरदार हो गया। तो जो लोग पेट के निशान से आए थे और वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, लालच बर्दाश्त नहीं कर सके और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के सामने ढेर हो गए, तो जो आजाद निशानों से आएंगे वो आपके नहीं होंगे, इसलिए मैं कहता हूं, मैं उनसे कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हकीकी जमहूरियत हो, अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान के साथ इंसाफ हो, तो तराजू को वोट दो, अब्दुल रज़ाक अब्बासी को वोट दो। हम हर जालिम के खिलाफ खड़े हैं, हर जाबिर के खिलाफ। ये पीपल्स पार्टी वाले, मैं इनसे कहता हूँ, ये मुस्लिम लीग नून को आप देख लें कि जो अभी तक अपना मंशूर नहीं बना सकी, वो कहते मैं पाकिस्तान बना, मंशूर अभी तक नहीं बना सके। ये मंशूर इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मंशूर बना सके। और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब से तो मैं कहता हूं
کہ جو اپنی پارٹی کا وفادار نہیں ہے وہ مٹی کا نام کا وفادار نہیں ہے۔ آپ کو پارٹی نے اسمبلی پہنچایا، آپ کو پارٹی نے سینٹ پہنچایا، آپ نے پارٹی سے غداری کی، تو جو پارٹی کا وفادار نہیں ہوتا وہ مٹی اور قوم کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ ہے، یہ انشاءاللہ یہ آپ کا قائد ہے، یہ آپ کا لیڈر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ باقی 2 ہفتے یا جتنے بھی دن رہتے ہیں اس کے سفیر بنو، اس کے نمائندے بنو، ایک ایک مسجد جاؤ، ایک ایک حجرہ بیٹھک جاؤ، ایک ایک دروازے پہ دستک دو، ایک ایک کھیت میں جاؤ، ایک ایک دکان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تراجو کی بات کرو، عبدالرزاق عباسی کی بات کرو، جماعت اسلامی کی بات کرو، سفیر بن جاؤ۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ اشرافیہ کا نہیں ہے، یہ پرستش طبقوں کا نہیں ہے، اس کے لوٹ مار نہیں چلے گی یا امریکی غلامی نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ پاکستان آزاد ہوگا، اسلام کا مرکز ہوگا اور عوام انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔